Hello guys, now we will study the class 7 NCERT Social and Political Life. Here we will see the chapter 5 Women Change the World. So basically here we will deal with the how the women helps to change the world and what are the role of women while changing the world. Okay, in the previous chapter we saw how women's work in a home is not recognized as a work. Okay, so as we have already discussed chapter 4, there we saw the work of women who were working at a home. Their work were not basically recognized. Like you might be also see if there are some women who are working at a home only. Okay, you might be also see some women's or if your relative or anyone near to your house, if she is working at your home, how basically work is not recognized. Okay, no one is saying like she is a working. People always used to say like she is just a homemaker, she does not do any work. Okay, especially this thing happen in a rural area. The urban area, the women who live in a urban area, the people who are their peoples are more educated as compared to the rural area. So there they try to understand the role of women who are working in a household. Now we also read how doing household working and taking care of a family member is a full time job and there are no specific hours at which it begins or ends. Okay, so basically here we are discussing, like we have already studied how doing household work, taking care of family is take a lots of time. It's a more than the full time job, because in a full time job there's a specific time is mentioned, but while doing the household work there's no specific time is mentioned. Now we will look at the work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for man than for women. Okay, so in this chapter we will look at a work, some work who are which are outside the home, and try to understand how the man's works are more suitable and they are more comfortable as compared to women's. We will also learn about how women strong for equality. Okay, we will also see how women's are always struggle for the equality. Like see, not a strong, there's a struggle word. Okay, so please make it so we you can always see like while before the independence of India. Okay, so there were basically lots of things like women was if we talk before the 1847 or before the 18 centuries. Okay, so there were lots of things going on, like there was sati system. Okay, there were and some others also, like the widow marriage. Okay, people say, suppose a husband dies, the widows the women the wife became widow and the widows was not allowed to marry remarriage. So there are lots of reforms were happening, means you can see the how women have struggled a lot to receive achieve the equality in a society. Even after being the independence, so many years of independence of India, women are still struggling to. So this we have saw how the women have struggled a lot. Getting an education was still is one way in which opportunities were created for the women. So you can see even in a rural area today's you can see, if there is any rural sector near to your house or near to your friends house, you can just visit and see the how girl and boy are discriminated even for the education, even for the basic needs. In some poor class families, if their livelihood is below poverty line. So basically what happened, they give more priorities to the like a boy baby and less priorities to the girl baby. So this is a still discrimination is happening in our society. Why for the women? This chapter will also brief stress the different types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in a more recent year. So what it's saying this chapter, so through this chapter we will also brief the trust different types of efforts, how many types of efforts which women have done, like what are the movements women have done to challenge the discrimination and what are the things. So basically this is just a overview of this chapter, women change the world, how the women change the world. So in this chapter we will learn the more things and in a briefly way.
So first topic is fewer opportunity and rigid expectation. So for the women, a lot of children in a Rusi ma'am class drew women as a nurses and man एज अ आर्मी ऑफिसर. सो यहाँ पे बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि कैसे वेमेंस को जो होती है वो अपॉर्चुनिटी बस कम होती है और इनकी लाइक मैंस की ज़्यादा होती है और उनकी एक्सपेक्टेशन कैसे रिजिड होती है. ठीक है. अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत से चिल्ड्रंस थे. ठीक है. एक मैम थी उनके क्लास में, तो उसमें से बहुत से चिल्ड्रंस को, जो वेमेंस थे उनको बेसिकली नर्स के लिए जॉब मिली और जो मैन थे उनको आर्मी ऑफिसर्स के लिए. द रीज़न दे डिड this is because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs. ठीक है. यहाँ पे बेसिकली ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें ये फील हुआ कि जो वेमेंस होती हैं वो घर के बाहर भी सिर्फ कुछ ही वर्क के लिए ही सुटेबल होती है. ठीक है. नॉट फॉर द एवरी वर्क. फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट द वुमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटली. ठीक है. तो बेसिकली वेमेंस नर्स इसलिए ऐसा क्यों होता है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो नर्स होती हैं वो मोर पेशेंट होती हैं. ठीक है. और वो जेंटली होती हैं, मीन सॉफ्ट हार्टेड होती है, इसलिए वो लोगों का ख्याल रख सकती हैं. दिस इज़ लिंक टू द वुमेंस रोल्स विद इन द फैमिली. सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट द साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद द टेक्निकल थिंग. ठीक है. वॉट इट सेइंग कि ये जो है वो सेम चीज़ दूसरे रोल्स में लिंक करता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो वुमेन्स होती हैं वो फैमिली के रोल्स को ही अच्छे से निभा पाती. रीज़न क्योंकि अगर हम देखा जाता है कि जो कुछ जॉब्स होते हैं जिसको साइंस और टेक्निकल चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती हैं और वेमेंस एंड गर्ल्स जो होती हैं वो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग टेक्निकल थिंग्स. नाउ because so many people believe in this stereotype, many girls do not get the same support that the boys do to स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम अ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. ठीक है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रीज़न बिकॉज ऑफ दिस स्टेरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है? अ थॉट विच इज़ अ जस्ट अ बेस्ड ऑन द लाइक ऑर्थोडॉक्सी थॉट. ठीक है. बहुत पुरानी कहावतें, ठीक है, जो बहुत सदियों से चली आ रही हैं, गलत थॉट्स को उसको स्टीरियोटाइप्स थॉट बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो थॉट्स है वो एक स्टीरियोटाइप्स बिलीव्स है. ठीक है. जो लोग बोलते हैं, बहुत सी गर्ल्स जो होती हैं वो सेम सपोर्ट नहीं मिल पाता उनको जो बॉयज़ को मिलता है इस स्टीरियोटाइप्स ऑफ थॉट्स की वजह से. जैसे कि अगर हम देखें जाए कि लाइक कि बहुत सी डॉक्टर्स को गर्ल्स जो होती हैं उनको क्या होता है कि उनको इंजीनियरिंग के पढ़ने के लिए नहीं मिलता है. ठीक है. और बॉयज़ ट्रेन टू बिकम अ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. ठीक है. बेसिकली बॉयज़ को क्या होता है कि उनको ट्रेन किया जाता है डॉक्टर्स एंड इंजीनियर बनने के लिए, गर्ल्स को नहीं. इन द मोस्ट फैमिलीज ऑन वंस गर्ल्स फिनिश द स्कूल दे आर encouraged by their family to see marriage as their main aim in life. ठीक है. तो बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि अगर मान लो एक कोई लड़की है वो उसने अपना स्कूल कंप्लीट किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, उसके बाद फैमिलीज़ उन्हें क्या बोलती है कि आप शादी कर लो. क्योंकि ये मतलब एक देखा जाए तो ट्रेडिशनली और कल्चरली हमारे बेसिकली इंडिया के रेस्पेक्ट में चला आ रहा है कि अगर जहाँ पे आपकी एज होती है, इवन दो जो एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है मैरिज की उससे लेस भी होती है, तो लोग बहुत ज़्यादा सोसाइटी को वो करने से पहले कि हाँ लड़की बड़ी हो गई है उसकी शादी कर ले, स्पेशली इन द मैटर ऑफ गर्ल्स. यहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ते हैं, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. इंजन ड्राइवर्स आर मैन बट 27-year-old लक्ष्मी लखरा फ्रॉम अ poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. She is the first woman engine driver for the Northern Railways. ठीक है. बेसिकली जैसे स्टीरियोटाइप थॉट्स को वुमेन्स ने ही चेंज किया. अगर आप देखो आज की स्टोरी, जो आज की कंडीशन है इंडिया में, यहाँ पे क्या है कि जो वुमेन्स है वो हर चीज़ में आगे हैं. अगर देखा जाए तो मेंस के कंपैरिजन हर चीज़ में वुमेन्स आगे है. तो सेम यहाँ पे जो स्टीरियोटाइप थॉट्स है कि गर्ल्स ये नहीं कर सकती, बॉयज़ ये कर सकते हैं, गर्ल्स को ये करना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि एक लेडी है जो 27 ईयर की है, लक्ष्मी लखरा, वो इंजन ड्राइवर्स है ट्रेन की. ठीक है. जनरली बोला जाता था कि इंजन ड्राइवर्स जो होंगे वो बॉयज़ ही होंगे, लेकिन इन्होंने ये स्टीरियोटाइप थॉट्स को, स्टीरियोटाइप्स उसको ब्रेक किया नॉर्दर्न रेलवेज की. नाउ लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल एंड ओवरकेम मैनी हार्डशिप टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रंस गॉट एन एडुकेशन. ठीक है. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो लक्ष्मी के पेरेंट्स है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं,
बट उन्होंने बहुत मेहनत किया और ये ओवरकम किया, हर एक मेहनत से वो आगे हैं और ये श्योर किया, मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, लक्ष्मी जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड और जॉब्स, ठीक है। बोला जाता है कि लक्ष्मी जो है एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है। इवन वो अपने जैसे कि स्कूल में भी हेल्प करती थी, ठीक है, हाउस वर्क करती थी और कुछ और जॉब करती थी। शी स्टडी हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसने बहुत हार्ड वर्क किया, आप देख सकते हो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, ठीक है, और उसे फिर डिप्लोमा मिला, उसने फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया। नाउ शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम एंड पास्ड इट ऑन हर फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है। फिर उसने रेलवे एग्ज़ाम दिया। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे में कोई भी जॉब लेने के लिए, इवन बहुत से छोटे लेवल की भी जॉब लेने के लिए, वहाँ पे एक जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट के थ्रू, रेलवे बोर्ड का, वो क्वालिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे लक्ष्मी ने वही किया था। Lakshmi says, I love challenges and moments. Somebody says it is not for the girls. I make sure I go ahead and do it. Lakshmi has had to do this several times in her life. Okay. लक्ष्मी क्या बोलती है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, वो मोमेंट स्पेशली, वो चीज़ स्पेशली जब कोई बोलता है कि गर्ल्स ये नहीं कर सकती हैं और बॉयज़ ये कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए ये काम नहीं है। लक्ष्मी ने अपने लाइफ में ये चैलेंजेस को बहुत बार किया है। व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल्स एट द पॉलीटेक्निक, व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम ए इंजीनियर ड्राइवर। उसने कब कब किया है, ठीक है, जब वो मान लो कि अपने डिप्लोमा के लिए इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट ले रही थी, वहाँ पर भी बहुत स्टीरियोटाइप थॉट्स है, लोगों ने बोला कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स तो गर्ल्स के लिए है ही नहीं, ठीक है। जब उसने मोटरसाइकिल चलाई, ठीक है, अपनी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ठीक है, और जब वो इंजीनियर ड्राइवर बनने का डिसीजन ली, तब हर फिलोसफी इज़ अ सिंपल, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice। लक्ष्मी की एक सिंपल सी फिलॉसफी है कि जब तक मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को हार्म किए बिना एंजॉय कर रही हूँ, जब तक मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही हूँ, ठीक है, जब तक मैं अपनी लाइफ को अपने चॉइस की वजह से जी रही हूँ, तो मैं क्यों अपनी फ़िलॉसफी को चेंज करूँ। तो आप देख सकते हो कि ये लक्ष्मी इज़ अ गर्ल एंड इसने कैसे स्टीरियोटाइप्स जो लोग होते हैं उनके थॉट्स के, कैसे बोला जाए तो मुंह पे तमाचा मारा, या फिर मतलब कैसे उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है। तो दिस वर द थॉट्स विच हैपन इन आवर सोसाइटी। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them. Sometimes this कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम अडल्ट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जिस सोसाइटी में हम जीते हैं, ठीक है, जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनको बहुत सारे प्रेशर पूरे वर्ल्ड और पूरे सोसाइटी से फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। समटाइम्स इट्स नॉट ओनली द स्टीरियोटाइप, समटाइम्स ये भी होता है कि सपोज़ अगर आप स्टडी में ज़्यादा गुड नहीं, एवरेज क्लास के हो, ठीक है, आपकी बगल में कोई आंटी रहती है, उनकी डॉटर है, वो शी इज़ अ वेरी गुड इन स्टडी, ठीक है, बट आप पैरेलली किसी और फील्ड में भी बहुत अच्छे हो, तो वो आंटी आपके घर में डेली आके क्या सुने, मेरी डॉटर ने 99% लाई, 95% लाई। दिस आर द ऑल्सो वन काइंड्स ऑफ मीन्स प्रेशर विच सोसाइटी ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द स्टूडेंट्स और चाइल्ड। समटाइम्स दिस कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम एडल्ट्स, ठीक है, कई बार ये जो है वो एक एडल्ट्स के डिमांड पे भी आता है। एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स, ठीक है। और कई बार ये जो स्टीरियोटाइप थॉट्स होते हैं, ये कई बार उनके खुद के फ्रेंड उन्हें बिना मतलब के परेशान करते हैं। बॉयज़ आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी, ठीक है। जो बॉयज़ हैं उनको ये प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो गुड सैलरी की जॉब पे फोर्स करे। लाइक बेसिकली क्या होता है कि इफ बॉय इज़ अ गुड अर्निंग एट अ होम, सो ही विल जस्ट ट्रीटेड लाइक अ गॉड और जस्ट लाइक ए किंग, एंड एवरीबडी विल बी जस्ट ट्रीटेड लाइक अ स्लेव। नाउ दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलिड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ
लोगों को, सपोज सम बॉयज़ आर नॉट गुड इन स्टडी और नॉट एबल टू गेट द गुड जॉब, okay, they are struggling in life for achieving the something which they want, okay, to achieve their goal. So what the people, they bully them, okay, उनकी bully की जाती है, उन्हें tease किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, all these things. Now you may remember that in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है कि आपने क्लास 6 की बुक्स में देखा होगा कि बेसिकली बॉयज़ को कैसे इनकरेज किया जाता है कि आप किसी के सामने रो नहीं सकते. क्यों? क्योंकि बॉयज़ को एक टैग दिया है कि आप बॉय हो, आप रो नहीं सकते हो. ठीक है. नाउ दिस इज़ अ स्टोरी, जस्ट वी विल गो थ्रू इट. सी, why do you want to take a history? Think about, see, this is just a story you can go through. In Xavier was Xavier was happy with the result of class 10th. ठीक है, क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ था और Xavier एक पर्सन है जो उससे खुश हुआ था. ये स्टोरी आप एक बार खुद से स्टडी कर लेना और इसे समझ लेना. दैट इज़ नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज़ जस्ट ए relevant example. So I hope you have understand this and enjoyed this class. We'll come to the next class with the next topic.